Rural people are increasingly engaged in non-farm rural occupation like transport services, business enterprise, or craft manufacturing. If they are close enough, then they may travel daily to nearly urban center to work while continuing to live in villages. So जो लोग अब रूरल एरियाज में रह रहे हैं और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज करते हैं, अपना कोई उन्होंने बिजनेस ओपन किया हुआ है या किसी क्राफ्ट में इन्वॉल्व है। क्राफ्ट मीन्स जो हम पेपर क्राफ्ट करते हैं वो नहीं, कोई भी हैंडीक्राफ्ट वर्क। अगर वो किसी अर्बन एरिया या अर्बन सेंटर के आसपास रहते हैं तो वो वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, बट रहते वो विलेजेस में ही हैं, रूरल एरियाज़ में ही हैं। Mass media and communication channels are now bringing images of urban lifestyle and patterns of consumption into the rural areas. अब रूरल एरियाज़ की भी इमेज चेंज हो रही है। कैसे? वहाँ पर मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू स्टाइल एंड पैटर्न्स जा रहा है अर्बन एरियाज़ का। लोग अर्बन एरियाज़ के स्टाइल्स एंड पैटर्न्स एक्सेप्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में रहते हुए। Consequently, urban norms and standards are becoming well known even in the remote villages, creating new desires and aspiration for consumption. So, अब जो remote areas हैं, remote villages हैं, वो भी develop हो रहे हैं। Mass transit and mass communication are bridging the gap between rural and urban areas. So, rural and urban areas में bridge कौन बना रहा है? Mass transit and mass communication. Even in the past, the rural areas were never really beyond the reach of market forces, and today they are being more closely integrated into the customer market. So एक टाइम था कि जब रूरल एरियाज़ में मार्केट ही नहीं होती थी, बट आज वो क्या कर रहे हैं, अपनी कस्टमर मार्केट बना रहे हैं। People are now going into the rural areas to get their commodities. Considered from an urban point of view, the rapid growth in urbanization shows that town or cities has been acting as a magnet for rural population. Those who cannot find work in rural areas go to the city in search of work. This flow of rural to urban migration has also been accelerated by continuous decline of common proper resources like ponds, forests, and grazing lands. These common resources enable poor people to survive in the village although they own little or no land. Now these resources have been turned into private property or they are exhausted. Ponds may run dry or no longer provide enough fish. Forests may have been cut down and have vanished. If people no longer have access to these resources, जब लोगों को रूरल एरियाज़ में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ या उतनी इनकम नहीं मिल पाती है तो वो क्या करते हैं, मूव करते हैं सिटीज़ और टाउन्स में। अब सिटीज़ और टाउन्स में भी एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर लिमिटेड जगह है, लिमिटेड लैंड है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो उन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वैनिश हो रहे हैं। जिस तरह की हमारे फॉरेस्ट है वो कम हो रहे हैं। पहले गांव में पॉन्ड्स होते थे, अब पॉन्ड्स या तो वैनिश हो गए हैं या उनका पानी बहुत ज़्यादा डर्टी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन पॉन्ड्स में फ़िश तो अवेलेबल नहीं है। सो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों को जिनके रिसोर्सेज या तो कम हो गए हैं या वैनिश हो गए हैं, एंड ये वो लोग हैं जो इन रिसोर्सेज पे डिपेंड हैं। But on the other hand, have to buy many things in market they used to get free fuel, fodder, supplement food items, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली चीज़ें थी जैसे कि फ्यूल, फॉडर और फूड आइटम्स, अब वो लोग जाके मार्केट में परचेज कर रहे हैं। देन देयर हार्डशिप इंक्रीजेस, और इससे क्या हो रही है, उनकी हार्डशिप इंक्रीज़ हो रही है, उनकी मेहनत ज़्यादा लग रही है। This hardship is worsened by the fact that opportunity of earning cash income are limited in the village areas. So सबसे बड़ा village areas में problem क्या है, rural areas में problem क्या है, वहाँ पर income बहुत ज़्यादा कम है। Sometimes the city may also prefer it for some social reasons, especially the relative anonymity it offers. The fact that urban life involves interaction with stranger can be advantage for different reasons. For the socially oppressed groups like scheduled classes and scheduled tribes, this may offer some partial protection from daily humility they may suffer in village where anyone knows their caste identity. सो लोग सिटीज़ में जाना क्यों प्रेफर करते हैं, एक तो वहाँ पे एक अननोन इंटरेक्शन कर सकते हैं हम, वहाँ पर कोई किसी के बारे में बॉदर नहीं करता है, कोई ये नहीं पूछता आपकी कम्युनिटी क्या है, आपकी कास्ट क्या है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है माइनॉरिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा सफरेंस से जाना पड़ता है, उनकी बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेटेड लाइफ होती है विलेजेस में, क्योंकि वहाँ पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। सो इसलिए नॉर्मली माइनॉरिटीज़ मूव कर जाते हैं सिटीज़ में, क्योंकि
क्योंकि लोग उनकी कम्युनिटी को इतना बॉदर नहीं करते हैं. The anonymity of city also allows the poorer section of the socially dominant rural groups to engage in low status work that they would not be able to do in village. So cities और क्या opportunity देता है, lower class लोगों को, गरीबों को एक opportunity देता है कि वो low class work में खुद को engage कर ले, जो कि villages में उनके लिए available था नहीं. All these sections make the city an attractive destination for villagers. The swelling cities bear testimony to this flow of population. This is evident from the rapid rate of urbanization in post-independence period. While urbanization has been occurring at the rapid pace, it is the biggest city, the metropolis. So, सबसे बड़े शहर को क्या बोलते हैं? Metropolises that have been growing the fastest. इंडिपेंडेंस के बाद से ही लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया एंड विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ की डेवलपमेंट होने लगी. These metros attract migrants from rural areas as well as from small towns. There are now 5,161 towns and cities in India, where 286 million people live. What is striking, however, is that more than two-thirds of the urban population live in 27 big cities with million plus population. Clearly, the larger cities in India are growing at such a rapid rate that the urban infrastructure can hardly keep pace with the mass media's primary focus on these cities. The public face of India is becoming more and more urban rather than rural. Yet, in terms of the population power dynamics in the country, the rural areas remain a decisive force. एंड थर्ड इज़ रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस. सो रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस में सबसे बड़ी बात होती है लिटरेसी लेवल की. सिटी एरियाज़ में लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट होते हैं एंड ऑन द कंट्रेरी साइड रूरल एरियाज़ में कम होते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूरल टू अर्बन माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि रूरल एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं. दैट इज़ वाई पीपल टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़. And 68.8% of population tend to live in rural areas, and most of them are depending on the agricultural activities. And लोग जो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं वो करते हैं पोस्ट ऑफिस में जॉब, टीचिंग, स्मॉल बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Now we'll learn reasons for migration from rural to urban areas. Mass media is responsible for making rural area aware of urban area and one of the cause of migration from rural and urban area. So rural area में information किसके थ्रू गई थी? Mass media के थ्रू. Mass media means टीवी, रेडियो, मोबाइल, न्यूज़. सो इन सब चीज़ों के थ्रू रूरल एरियाज़ में पता चला कि अर्बन एरियाज़ का लाइफस्टाइल किस तरह का है, जिस चीज़ ने लोगों को अट्रैक्ट किया. मैनी रिसोर्सेज ऑफ रूरल एरियाज़ इज़ बीइंग केप्ट अवे सच एज रिवर डाइंग अप. सो बहुत सारे रिसोर्सेज है रूरल एरियाज़ में जो कि ख़राब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. ये रीज़न था कि लोगों ने रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन में जाना ज़्यादा प्रेफर किया. लैंड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन इज़ मेकिंग देम मूव टू अर्बन एरियाज़. क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, अर्बन एरियाज़ में रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ को भी अर्बन एरियाज़ में कंसिडर कर रहे हैं. इन अर्बन एरिया देयर इज़ एनॉमिटी एंड नो वन केयर अबाउट कास्ट. सो अर्बन एरियाज़ में कोई किसी के बारे में बॉदर नहीं करता, कोई किसी के कास्ट के बारे में नहीं पूछता. सो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी माइनॉरिटीज़ के लिए कि वो अर्बन एरियाज़ में जाएं और जितनी भी प्रॉब्लम्स वो बियर कर रहे हैं अपनी कास्ट की वजह से वो बियर ना करें. सो दैट इज़ वाई वो अर्बन एरियाज़ में मूव कर जाते थे. पीपल हु आर नॉट एडुकेटेड कैन पिकअप एनी जॉब दे लाइक इन अर्बन एरियाज़. सो विलेजेस में तो जॉब्स होती ही नहीं थी. सो लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी मिली अर्बन एरियाज़ में कि अपनी एडुकेशन या अपनी स्किल लेवल के थ्रू वो कोई भी जॉब पिक कर सकते थे और अर्निंग कर सकते थे. अर्बन एरियाज़ भी दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ मेट्रोपोलिस एंड सेकेंड इज़ मेगापोलिस. मेट्रोपोलिस आर द वन विच आर नॉट इंक्लूडिंग दी सबअर्बन एरियाज. सबअर्बन एरियाज मीन्स सिटी के जो बाहर का एरिया होता है, आउटस्कर्ट्स. ठीक है. मेगापोलिस वो होता है जिसमें आउटस्कर्ट यानी कि सबअर्ब एरिया को इंक्लूड किया जाता है. सबअर्ब एरियाज़ रूरल एरिया ही होता है बट एक लेवल तक होता है, एक लिमिट तक सबअर्ब बोला जाता है. उसके बाद में जो भी वो पार्ट आ रहा है, कोई भी रीजन आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप दे नेम इट. बट रूरल एरियाज आर नेवर सबअर्ब्स.